one Om chant and then our invocation. Om. Asato ma satamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma mritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. So today is our 11th session of Atma Bodh, and we are going to do the verses 31, 32 and 33. But before we take on the verses, I would like to speak about what Atma Bodh is teaching us in our day-to-day language, so that it is very, very clear and easy for us to assimilate and imbibe. So, first thing we have to understand that yourself is not your person. Yourself is not your person. There is the self and the person or the personality. Your personality is a part of the changing picture. It is continuously changing. You are today not what you were 1 year ago, not what you were 1 month ago. Maybe you have also become different from what you were yesterday. This body, this outside scenery is like flowing water. And if you try to hold on to it, you become very unnatural. So the thing to do is to let this picture flow like water while you remain steady and stable in your witness consciousness. Develop this habit of seeing that in you which is not changing. So seeing that in you which is not changing. Give that some time. जैसे हम लोग थोड़ी सी देर मेडिटेशन में बैठते हैं. Marinate in that bhav. If you watch from the place of the person, it is very unstable. If you watch from inside, from the space of the person, it is very unstable. Today you will say, oh, I love you so much. Tomorrow, the love will start reducing a little. Day after, you will think, why did I ever love this person? He is not even worthy of loving. You see how much you change. And what determines these changes? Because the ego mind is influenced by so many impressions of the past, which you are not even aware. Sometimes you are not even aware कि तुम्हारे पास में ये है impression तुम्हारे अंदर में घर कर गया है. But these impressions are a force which compel you. Thoughts rise in your mind which you do not want. The ego mind feels it does not have the power to transcend these forces. ये thoughts इतने powerful हो जाते. These impressions have grown so strong because we have never looked in the way that Atma Bodh is now inviting us to look at ourselves. Therefore, how do we talk? We keep talking ki, oh, this is happening, this has happened. What can I do now? So much noise we create in our mind. There is a space within you that is free of noise. No one who has been there has had a single complaint in life. जितने हमारे enlightened masters हैं, जितनों को हम जानते हैं जो पहुंचे हुए हैं, उनको कभी लाइफ से कोई कंप्लेन नहीं होता. लेकिन हम लोग हर समय कह रहे हैं ये हो गया, वो हो गया, अब क्या करें, ये कैसे हैंडल करें. उस स्पेस
में जाना मतलब अपने आप को बहुत ढेर सारा बफर और पैकिंग में रखना, जिससे कि हम हमेशा अपने आनंद में रह सकें। अब देखिए, माइंड क्या कहता है आपसे? माइंड कहता है कि अरे तुम ऐसे कर रहे हो, दिस इज वेरी इररिस्पॉन्सिबल वे, हाउ कैन यू डील विद योर सिचुएशन सो कामली, सो मच अपहीवल हैज हैपेंड। ये सब माइंड के वेज है। जब तुम इस माइंड को सुनना बंद कर दोगे तो फिर तुम्हारे अंदर क्या आएगा? माइंड तो तुमको बताएगा कि यू आर रनिंग अवे फ्रॉम लाइफ, बट फिर तुम्हारे अंदर आत्मा की दृष्टि से क्या आएगा? नो, यू आर सिंपली टर्निंग अवे फ्रॉम स्ट्राइफ, नॉट रनिंग अवे फ्रॉम लाइफ. You are affirming that which is true life in you. Apply this now and don't keep it in the fridge. ये जो हम लोगों ने अभी बात करी, इसको अभी कभी अपने जीवन में अप्लाई करिए. Don't keep it in the fridge to eat later on. That means what have we talked about? The one point that we have got over here is that you dip yourself in that inner core which is always silent. और दूसरा है कि this is one that you there is a place within you which is free, and develop the habit of seeing not from the person's point of view but from the atma's point of view. ये habit हमको, ये 2 point अभी तक cover हुए हैं. अभी क्या होता है? When you hear such words which point to yourself, your inner being confirms and feels relieved. You don't have to be afraid. उसके अंदर सबसे पहले क्या फीलिंग आती है कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, जो होगा सो ठीक है. ये तो संसार है जो कि एक बुदबुदा है. कुछ बातें तुम्हारे जहन में आती रहेंगी जो तुमको ज्यादा अच्छी लगेंगी, क्योंकि तुम इतने साल से इसी तरह से सोचते आए हो. ये तुम्हारे लिए आसान है, ये तुम्हारे व्यक्तित्व को खींचेगी. They will have a pull for you, the negative things, you know, thinking from the personal point of view. This is the idea you have of yourself, not of your real self. ये विचार जब आते हैं, उन्हें आने दो, अपने आप में ठहरो. उन विचारों को आने दो, वो अपने आप चले जाएंगे. तुम अपने आप में ठहरो तो ये आएंगे और चले जाएंगे. तुम्हारी आत्मिक सोच इन्हें न्यूट्रलाइज कर देगी. तुम्हें लगेगा और भी ज्यादा माइंड और भी ज्यादा उखड़ेगा अभी, क्योंकि हम लोग आत्मा की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो माइंड अपने पैतरे दिखाएगा. तुम्हें लगेगा हालात बिगड़ रहे हैं, तुम्हारा मन घबराएगा, उसे लगेगा उसकी मौत हो रही है. माइंड को क्या लगता है? अरे अब तो मेरी तो कोई चलती ही नहीं है. वह पूरा दम लगाएगा, पर तुम अपनी शांति में रहो. एक बात याद रखनी है, ये तीसरा पॉइंट मैं आपको दे रही हूँ कि गुरु हमारे साथ हैं, उनका एनकरेजमेंट, प्यार, उनके सत्य की वाणी तुम्हें हमेशा सपोर्ट करती है. समय भी है तुम्हारे पास, रिसोर्सेस भी है, पर तुम्हें अपना साथ देना है. तुमको अपना साथ देना. कुछ भी मिसिंग नहीं है तुम्हारे जीवन में. अगर कुछ मिसिंग है तो वो ये है कि तुम you yourself are missing from your own life. हमारी लाइफ से हमारा ही सेल्फ मिसिंग है, इसी वजह से हम सुखी दुखी होते हैं. हमको करना क्या है? We have to be like a presence. घबराना नहीं है. तुम्हारा साक्षी मजबूत होता जाएगा जैसे जैसे वह ज्यादा शक्तिशाली बनेगा. मन के नेगेटिव विचार स्वयं दुर्बल हो जाएंगे. और ये जो एडवाइस है ना, ये इमीडिएटली वर्क करती है. ये नहीं है कि तुमको एक बीज दे रहे हैं, वो तुम जाकर के
खेत में बो, फिर उसकी फसल उगेगी, फिर हार्वेस्ट करना है। इन बातों पर अगर हम हाथ का हाथ चल पड़े तो वो अभी का भी कारगर होते जाएंगे। हमको अपने हृदय की खिड़की खोल कर रखना है और आत्मा की धूप आने देना है, और फिर चमत्कार ही चमत्कार होगा। हमारे दुख जो है वो कब का कब सुख में परिणित हो जाएंगे। We will be in a state of equanimity above सुख and दुख। रोजमर्रा का काम सारा का सारा वैसे ही चलेगा। शॉपिंग भी करनी है, घर भी चलाना है, सबको संभालना भी है, पर यह सब ठंडक से होगा। चिंगारियां खत्म हो जाएंगी, प्रेम पनपेगा, धैर्य, सेंसिटिविटी, दूसरे के प्रति अपने अंदर एक प्रफुल्लता बनी रहेगी, जो मिटाए ही नहीं मिटेगी। आप चाहेंगे तो भी वो आपकी इनर स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी, ऑफ जॉय, ऑफ कंटेंटमेंट, वो खत्म ही नहीं होगा। अब आपको एक और बढ़िया पॉइंट बताती हूँ कि द हाईएस्ट इज द सिंपलेस्ट। द हाईएस्ट इज द सिंपलेस्ट। तो टू रीच द हाईएस्ट, where do you have to start? Do you have to start from the lowliest? Do you have to start just below the highest? Or do you have to start way below the highest? You have to start from the highest to reach the highest. You have to know that you're already that Atma. Only then will it be your own being. You understand? That will encourage the intuitive insight which is required for you to establish yourself in your Atma Tattva. अब देखिए, आत्मा हमारे इतना अंगसंग होते हुए भी हमको क्यों नहीं फील होती है? दिस इज द फिफ्थ पॉइंट आई एम टेलिंग यू। ये सब पॉइंट्स मुझे एज एन इंसाइट और एज पॉइंटर्स टू द आत्मा मुझे इतने अच्छे लगे थे कि मैंने नोट डाउन कर लिए थे कि जो नाइफ, एक नाइफ है, बहुत शार्प है, वो सब कुछ काट सकती है, बट क्या नाइफ अपने आप को काट सकती है? आंख जो है वो सब कुछ देखती है, पर क्या आंख कभी अपने आप को देख सकती है? जबान जो है वो सब कुछ टेस्ट करती है, पर अपने आप को नहीं। और एक वेइंग मशीन है, वो सब कुछ वे करती है, पर अपने आप को वे नहीं कर सकती। इसी तरह से ये आत्मा भी हमारे लिए इल्यूसिव होती है, हमारे इतना नजदीक होते हुए भी हमको फिर भी पकड़ में नहीं आती है। इसलिए आत्मबोध जैसे ग्रंथ। ठीक है, तो अब हम लोग आत्मबोध का 31वां श्लोक शुरू करेंगे। आविद्यकम शरीरादि, कोई भी प्लीज रिपीट करें। आविद्यकम शरीरादि, आविद्यकम शरीरादि, दृश्यम बुद्बुद्वत् क्षरम, दृश्यम बुद्बुद्वत् क्षरम, एतद्विलक्षणम एतद्विलक्षणम, विद्यादहम विद्यादहम, ब्रह्मेति निर्मलम। ब्रह्मेति निर्मलम। ब्रह्मेति निर्मलम। हाँ, अभी मैं आपका इसको मीनिंग पढ़ करके सुना देती हूँ। द बॉडी एंड सो ऑन, शरीर आदि कहा है ना, अप टू द कॉजल बॉडी which is ignorance, are objects perceived and thus they are perishable. कैसे perishable? As bubbles, बुद्बुदों की जैसे, बुलबुलों के जैसे। Realize this through discrimination that I am ever the pure Brahman, entirely different from these. That the pure Brahman is entirely different from what? आविद्यकम शरीरादि, शरीर से शुरू करके पूरा विश्व जो कि हमको
दिखाई पड़ता है इन आंखों से एज एन ऑब्जेक्ट, वो सब कुछ बुदबुदे के जैसा है और हर समय पिघल रहा है, डीके हो रहा है, डीजेनरेट हो रहा है। और एत विलक्षणम विद्यादहम, कि जैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो ब्रह्म तत्व है वो इन सब से विलक्षण है, इट इज ऑफ अनदर डायमेंशन, it is not of the same category as the entire world, starting from your body to the whole world, manifest world. Everything is different and the Brahma Tattva is of a different element. Vidyadaham matlab, as soon as you realize this thing, that it is of a different element. So, देखिए, अविद्यकम शरीरादि दृश्यम, अब यहाँ पर क्या वो इंगित कर रहा है कि जैसे वो दृश्य दृग दृश्य विवेक वाला जो प्रोसेस है उसको अपना करके सारे संसार को अपने से अलग कर दो। I am the subject and this whole world including my own body is the object. और शरीर आदि कहाँ तक? कॉजल बॉडी तक, जो सूक्ष्मतम है वो भी, नॉट ओनली द फिजिकल ग्रॉस मैटर, बट जो हमारा मेंटल बॉडी है, जो प्राणिक शरीर है, वो सब कुछ जो है वो हम वो ऑब्जेक्ट है। और मैं मेरे फ्रॉम द आत्मिक पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज द सब्जेक्ट, ये यहाँ पर लगाने को बोल रहा है। Shankaracharya is asking us to employ that process of Drig Drishya Vivek, keeping myself as subject and the rest of the world is object. So I am separate. अब इसके अंदर आपके जितने एक्सपीरियंसेस लाइफ में आ गए, जितने इम्प्रेशंस, जितने मेंटल प्लेन के इमोशंस, वो सब भी ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि यू आर द वन हु बिकम्स अवेयर ऑफ देम। और ये एंटायर वर्ल्ड, इसको अविद्या क्यों कहा है, ये कहाँ से पैदा हुआ है? क्योंकि हमको अपनी ट्रू सेल्फ मालूम नहीं है। देखिए कहाँ से हमारा अज्ञान शुरू, उसकी रूट क्या है? क्योंकि हमको अपनी सेल्फ मालूम नहीं है, इसलिए हम अपने आप से डिससैटिस्फाइड होते हैं। फिर हमको अपने आप को पूरा करने के लिए कर्म करने पड़ते हैं, और उन कर्मों का फल देने के लिए ये पूरा संसार ऐसे पैदा हो जाता है, जो कि आप अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकता कर सकें। यहाँ तक उसने इस श्लोक में समझा दिया है। सारी कर्म थ्योरी को ले आए, सारा अविद्या कहाँ से शुरू होती है वहां से वहां तक हमको ले गए कि ये शरीर और इसका जो कॉजल बॉडी, ये अन्नमय कोश, फिर मनोमय कोश, और फिर उसका कॉजल बॉडी, जो अविद्या, जो नींद में खाली हमको महसूस होता है, वो सब कवर अप कर लिया, प्लस कंप्लीट वर्ल्ड कवर अप कर लिया। उन सब को आप एक बाजू कर दीजिए, वो अलग डायमेंशन के हैं और आत्म तत्व अलग डायमेंशन का है। ये उन्होंने अभी तक समझा दिया है। और अब इसके बाद क्या बता दिया कि दैट इज ऑफ निर्मलम, हमेशा वो निर्मल रहता है। अब मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि देखिए ये आत्मबोध आदि ग्रंथों को और इतने हम लोगों ने जो एक के बाद एक उपनिषद करे हैं, उसका मेरे ऊपर क्या असर पड़ा मैं आपको बताती हूँ। तो मैं जब अपनी मेडिटेशन में बैठती थी तो मैं 21 टाइम्स ओम बोलती थी। तो जब ये शुरू करा उसके पहले ये 21 टाइम्स ओम बोलना मुझे बहुत ही बोरिंग लगता था। ठीक है, फिर हम लोगों ने मांडूक्य उपनिषद करा। तो अब इसके बाद में
मैं जैसे ही ओम बोलने लगती थी तो मेरे चेहरे पर एक खुशी छा जाती थी और मैं कहती थी, अरे मेरी वेकिंग स्टेज खत्म हो गई, अरे मेरी ड्रीम स्टेज भी खत्म हो गई, अरे मेरा कॉजल स्टेज भी खत्म हो गई और अब मैं अपनी तुरीय अवस्था में। तो वो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और आई एंजॉयड इट एंड आई वांटेड टू रिमेन इन माय तुरिया फॉर एज लॉन्ग एज आई वांट। अब क्या हो गया है, जैसा जैसा इसका निधिध्यासन होता जा रहा है, अब मेरे लिए अ उ म बोलने में भी मेरे को जैसे कि रुचि नहीं रही और अब मैं सीधे अपनी तुरिया, अपनी साइलेंस, उसी में ओम को छोटा सा करके और मैं खाली साइलेंस का आनंद लेना चाहती। तो ये मुझे एक मार्क्ड डिफरेंस मेरे अंदर मुझे महसूस हुआ, तो आई थॉट आई विल शेयर इट विद यू। तो अब मुझे क्या लगता है कि उस अखंड शांति ने बाकी सब एक्सपीरियंस को निगल लिया, ऐसा मुझे फीलिंग आती है। All in all, I am a very different person today than what I was before the COVID started and before our session started. अब देखिए ये जर्नी हम सब की कैसे पूरी हुई। तो पहले तो हम लोग अपने शरीर से बंधे रहते हैं, सजना संवरना, शॉपिंग जाना। फिर जैसे जैसे हम थोड़ा मैच्योर होते हैं तो हमको लगता है लेट मी फाइंड सम मीनिंग इन माय लाइफ, लेट मी डू समथिंग मीनिंगफुल। तो फिर हम या तो काम की तरफ जाते हैं, सक्सेस फेलियर हमारे लिए मैटर करती है, उसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन होता है। और फिर हम साथ साथ अपनी थोड़ा आध्यात्मिक तरफ हमारा झुकाव हो जाता है, इस तरफ की स्टडी हो जाती है और फिर शास्त्रों को सुन करके हमारी प्रोग्रेस फास्ट होने लगती है। अब हम देखते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन का माइंड कैसे बदला। अभी हम लोग तो देख रहे हैं कि हम लोग कैसे बदले हैं, शना शन हम लोग के अंदर क्या क्या परिवर्तन आया है। अब कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन का पहले तो बहुत देर तक उसका पहले अध्याय का उसका लेमेंटेशन चला, वो सब अर्जुन ने कृष्ण भगवान ने अर्जुन का सुना। उसके बाद 11वें श्लोक से, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से उन्होंने सीधा अद्वैत ज्ञान बताना शुरू करा अर्जुन। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मेनली गीता इज अबाउट अद्वैत शास्त्र, और ये बताने के बाद क्योंकि अर्जुन पूरी तरह से समझ नहीं पाया इसलिए उन्होंने बाकी के 18 अध्याय भी बोले, 16 अध्याय जो बाकी बचे हैं दूसरे अध्याय में ये पूरा करा। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि उन्होंने शुरू में अद्वैत ज्ञान बोला। हाँ, तो और बहुत लोग कहते हैं कि भाई गीता जो है वो तो कर्म प्रधान है, गीता जो है वो भक्ति प्रधान है। ये सब भी खोले, लेकिन हम जो कि अद्वैत की तरफ झुकाव रखते हैं, हमको तो यही लगता है कि गीता की मेन टीचिंग अद्वैत ज्ञान है। ठीक है। और अद्वैत में अभी देखिए अद्वैत में क्या बताते हैं, एक तो दृष्टा है और फिर दृष्टा का साक्षी होना। जब तक हम दृष्टा हैं, मन से मिलकर के हम अपने आप को भीतर से भी देख रहे हैं, तब हम दृष्टा हैं। और साक्षी क्या है, जब हम मन के साथ मिले बगैर उसको देख रहे हैं तब हम साक्षी। ये बात हम लोगों ने पहले भी इसको टच किया था कि दृष्टा और साक्षी में क्या फर्क है। और कौन समझाएगा, कौन ये बात को समझा है और या पहले जो सुनी हुई है वो याद है। आप लोग कोई भी अगर बता सके तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। साक्षी और दृष्टा में क्या फर्क है, ये मैं पूछ रही हूँ। आमला जी, जब आप मेडिटेशन करते हैं, आई जस्ट वांटेड टू से व्हेन वी डू मेडिटेशन और हमको कहते हैं कि ब्रेथ को वॉच करो, हाँ, तो वो दृष्टा देखता है, साक्षी नहीं देखता। नहीं, राइट। So that's the difference. हाँ, जब हम अपने मन को भी देख रहे हैं, अंदर से भी देख रहे हैं, लेकिन मन से मिल करके देख रहे हैं, तब हम दृष्टा हैं। जब हम मन से नहीं मिले हैं, जब आपको हमने पहले बार सेकंड टाइम आप आए थे ना प्रभु रेखा जी,
हाँ, आपसे सवाल जवाब करे थे ना, पहली बार हाँ, मनीषा आई थी और सेकंड टाइम आप आए थे। उस समय आप प्योर साक्षी में थे, हाँ, आप दृष्टा में नहीं। ठीक है, जो आपने एग्जाम्पल दिया वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। ठीक है, अब ये जो सारे दृश्य हैं ये कैसे हैं, ये बबल्स की जैसे हैं। ये अपने इस श्लोक में आया है, ये बिल्कुल बबल्स के जैसे हैं। केवल आत्म तत्व की रियलिटी ही एक अलग डायमेंशन की है। हाँ, अब अभी ये बता रहे हैं कि देखो ये आत्म तत्व डीपर देन द 5 layers इंक्लूडिंग द कॉजल शीथ इज द नेचर ऑफ अस, दैट इज वेयर शंकरा इज पॉइंटिंग। This nature is beyond the differing personalities that we are. हम लोगों ने अपने आप को बहुत कुछ मान रखा है, हम एक औरत हैं, हम ऐसे हैं, हम अपना घर अच्छी तरह से रखते हैं या हम खराब तरह से रखते हैं, या हमको गुस्सा जल्दी से आ जाता है, सब कुछ हमने मान रखा है ना। अब देखिए कृष्ण भगवान ने क्या किया कि ये सब चीज तोड़ने के लिए उन्होंने मृत्यु को कई बार एम्फसाइज किया। मृत्यु के बारे में लंबा चौड़ा उन्होंने व्याख्यान दिया कि मृत्यु किसकी है, शरीर की मृत्यु है। ये भी पॉइंट हम लोग कर चुके हैं कि शरीर में बर्थ है, डेवलपमेंट है, वृद्धावस्था है, डिके है और डेथ है। ये किसमें है, शरीर के धर्म है, ये सब शरीर के धर्म है। और मन के धर्म क्या है, सुख दुख, पेन, इमोशन, भय, राग द्वेष, ये सब किसके धर्म है, मन के धर्म है। और प्राण, प्राणों में क्या है, भूख और प्यास। इनको अलग अलग समझ लेना है। जितने भी प्राणी हैं इस विश्व में उनको भूख और प्यास लगेगी। पेड़ को भी भूख और प्यास लगेगी, पशु पक्षियों को भी भूख और प्यास लगेगी। और जिस जिसका मन जितना जितना डेवलप्ड है उतना उतना उसको सुख दुख महसूस होगा। जैसे एक पशु है, उसका माइंड इतना डेवलप नहीं है, तो अगर उसका पेट भरा हुआ है तो बाय एंड लार्ज ही सुखी है ना। तो ये सब अलग अलग जो हमारे अलग अलग इसके शीट्स हैं, कोश हैं, उनके क्या क्या धर्म है ये समझने से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप मुझ आत्मा में कुछ ये सब कोई चीज है ही नहीं। भूख और प्यास प्राणों का धर्म है, और सुख और दुख और राग और द्वेष और भय और पीड़ा ये सब मन का धर्म है। और शरीर में क्या है, द 6 changes of the body, birth, development, full grown, old age, decay and death। ये सब चीजें शरीर का धर्म है, ये आप में कभी बनी ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कृष्ण भगवान ने काफी समय तक डेथ के ऊपर बात करी। Now, on the practical plane, how will we connect with the Atma? Now, even the idea that I am not connected with the Atma is also just an idea. It is not the truth, because in effect, you are connected at every level with the Atma Tattva. Normally, you will hear teachings like if you control your mind, if you can quieten your desires or quit your desires, and then such and such will be the result. This is the kind of bhasha that you will normally hear. But if we say that after the control of the breath, you will feel the Atma, that means we are putting a condition on the Atma, which is conditionless, which is free of all conditions. You understand? And also we are reinforcing an idea that you are apart from the cells.
You will need to do something to become the self. अच्छा, अब मैं आपको एक बात आपसे सच्ची सच्ची पूछना चाहती हूँ कि there was a time when we all believed this to be true, but having gone through the Vedantic meditations and having had the chance to connect with yourself, will you not revise your view of this? Will your view of this not change? Okay, we will leave the 31st verse here and we will now do 32nd verse. यहाँ पर एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. From the 32nd verse, there is a new thing, which is निदिध्यासन. और इस निदिध्यासन का मेन पॉइंट क्या है? ये फर्स्ट पर्सन में बोला हुआ है कि मेरे में. अभी तक ये है कि देह में, इसमें, तुम्हारे शीट्स में. अभी कह रहे मुझ में. अभी यहाँ से आप समझिए, यहाँ पर निदिध्यासन आ जाता है. मनन, श्रवण और निदिध्यासन, उसके अंदर अपने आप को डुबा देना और एस्टैब्लिश हो जाना. समझ गए? वो कब हो सकता है? जब आप फर्स्ट पर्सन में ये सब बातें फर्स्ट पर्सन में बोल सकें. Only then it will be that you are really established in the Atma. अब मैं इस श्लोक को पढ़ देती हूँ और प्लीज कुछ लोग मेरे साथ रिपीट करें. देहान्य त्वान्न, बोलिए. देहान्य त्वान्न में जन्म जरा कार्श्य लयादयः शब्दादि विषयैः संगो निरिंद्रियतया न च. हाँ. I am other than the body. अब यहाँ से देखिए, I से शुरू कर दिया उन्होंने. I am other than the body, so I am free from the changes such as birth, wrinkling, salinity, death and so on. तो ये सब बातें हमको मालूम है, we are already aware. लेकिन हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन में निदिध्यासन करने के लिए, उसको अपने अंदर उतारने के लिए. ये बात अभी तक 32 श्लोकों तक उन्होंने यही बात कही है, लेकिन इस समय एक स्लाइट चेंज के साथ कर रहे हैं. और उनका एंगल क्या है कि हम निदिध्यासन करके उसमें टिक जाएं. इसलिए फर्स्ट पर्सन यहाँ आया. मैं, अहम और मैं का मतलब यहाँ पर किया है. ठीक है. I have nothing to do with these objects such as sound and taste, for I am without the sense organs. अब अंदर से महसूस करिए of a state when you are without the sense organs. अंदर से उसको फील करिए when you are without sukh and dukh. You understand? I will tell you the reason for Nididhyasan is, even if you know that the crystal is clear. अभी मैं crystal का example देकर के आपको समझा रही हूँ. ऐसे ही समझाया गया है इस विषय को कि जैसे हमने crystal का example लिया था कि वो जो crystal रखा है, crystal की बॉल, वो orange कलर के टेबल क्लॉथ पर रखी है. तो ऑरेंज कलर का टेबल क्लॉथ उसमें इतना सुपर इम्पोज हो जाता है कि वो क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखता है, वो ऑरेंज ही दिखता है ना. We cannot wait for the orangeness to go away. अगर हम सोचे कि ऑरेंजनेस चली जाएगी तब मैं क्रिस्टल के अंदर टिकूंगा, वो नहीं संभव है. उसके साथ साथ आपको क्रिस्टल की कलरलेसनेस समझनी है.
It is a matter of deep recognition and contemplation. Suppose we equate the orangeness with sadness. Sadness हमारे मन में होती है ना, orangeness तो नहीं होती, sadness. That sadness is not going to go away quickly because it is superimposed on the Atma. How to get rid of the sadness? We do not have to take our sadness seriously. Stop taking the sadness seriously. Then you will be able to get above the sadness. It does not really affect your Atma. It is such a deeply ingrained conclusion that sadness affects you. These teachings are going to remove that deeply ingrained conclusion, because we have learned that sadness is the dharma of the mind, not of the Atma. But you will say, ki, that feeling which I get after hearing the Gyan is not as strong as my experience of the sadness. इसलिए I can't give up the sadness. यही सवाल उठता है ना कि भाई ये चीज इतना मेरे अंदर, लेकिन ये इसीलिए कहते हैं कि बार बार करना। अब इसमें मैं आपको एक कहानी सुना देती हूँ। हालांकि ये कहानी आप लोगों ने पहले सुन रखी होगी, लेकिन ये जो कहानी है ये इस जगह के लिए बहुत ही एप्ट है। तो एक सिंगनी थी, तो इसका एक छोटा सा बच्चा हुआ। तो वो जंगल में जा रही थी, तो बच्चा कहीं खो गया और सिंगनी ने सारी तरफ बहुत ढूंढा, लेकिन उसको जब मिला ही नहीं तो वो हताश होकर के बच्चे को भगवान के उसके सौंप करके जैसे कि वो वहां से चली गई। अब ये जो छोटा सा बच्चा था, इसने एक भेड़ों का झुंड देखा, तो ये भेड़ों के झुंड में जाकर के मिल गया। और भेड़, हालांकि ये शेर था और वो रिकग्नाइज कर गए कि भाई ये शेर है, क्योंकि छोटा सा आकार था ना, शेर का ही आकार था, लेकिन उनको इससे डर नहीं लगा, क्योंकि एक तो ये बहुत छोटा था, भेड़ तो बड़ी बड़ी थी और ये तो एकदम छोटा सा था। तो इस छोटे से पिल्ले से उनको डर नहीं लगा और ये उनके साथ रहने लगा। उन्हीं के साथ वो घास चरता था, उन्हीं के साथ वो मैं बोलता था और उन्हीं को अपना सब कुछ मानता था। फिर क्या हुआ, 10 साल गुजर गए इस तरह से, और अब ये बड़ा अच्छा खासा फुल ग्रोन लायन हो गया। लेकिन ये भेड़ों का झुंड इस लायन से नहीं डरता था, क्योंकि वो तो इन्हीं का एक हिस्सा हो गया था। अब क्या हुआ, एक और लायन उधर से गुजर रहा था और उसने देखा, अरे ये तो बड़ा अजीब सा सीन है, ये भेड़े हैं और उनके बीच में एक ये शेर भी घूम रहा है और ये भेड़ों से डर भी नहीं रही है। तो वो सोचने लगा कि मैं पता तो लगाऊं माजरा क्या है। तो वो भागा उसकी तरफ, तो एक दूसरे शेर को अपनी तरफ आते हुए देख करके बाकी सब भेड़ें सरपट भाग गईं और ये कुछ इसको कुछ अजीब सा लगने लगा और ये पीछे रह गया। तो ये वाला जो दूसरा नंबर का शेर था, ये इसके पीछे हो लग गया और ये आगे आगे भाग रहा है और वो जो दूसरा शेर है उसके पीछे पीछे भाग रहा है। और फिर वो चेस करते करते एक पानी का, जहां पर पानी था और वो आगे नहीं बढ़ सक रहा था शेर, वहां पर आकर के वो शेर कॉर्नर हो गया। तो इस दूसरे वाले शेर ने उससे पूछा कि भाई ये क्या माजरा है। तो उसने कहा, माजरा क्या है, मैं तो भेड़ हूं, मैं तो इनके साथ रह रहा हूं। तो फिर वो बोला कि तुम भेड़ नहीं हो। और फिर उसको एकदम से सूझा कि यहाँ तो पानी है, ये अपना रिफ्लेक्शन देख सकेगा। तो उसने कहा कि तुम जरा झुक करके पानी में अपना रिफ्लेक्शन तो देखो। तो उसने देखा तो उसकी तो चेहरा शेर का था, जैसा ये दूसरा शेर दिख रहा है जिससे कि भेड़ लोग भाग रही थी। फिर उस दूसरे वाले शेर ने इसको कहा कि तुम दहाड़ लगाओ। तो उसने दहाड़ लगाई, तो सचमुच उसकी दहाड़ भी उतनी ही जोर की निकली जितने की दूसरे नंबर के शेर की थी। अब वो बिल्कुल कन्विंस हो गया और उस दिन रात को वो चुपके से उस भेड़ों के झुंड से अलग होकर के आ गया। और अब उसको मालूम हो गया कि वो शेर है, तो वो ऐसी बढ़िया नींद सोया क्योंकि उसको किसी चीज का डर ही नहीं था। अब क्या हुआ, अगले दिन सवेरे वो जब उठा तो एकदम से उसका माइंड अलर्ट नहीं हुआ और वो पहले की आदत की वजह से
वापस जाकर के उस भेड़ों के झुंड में मिल गया और फिर से इस दूसरे नंबर के शेर ने उसको बुलाया अपने पास, दहाड़ सुनाई, उसको खुद भी दहाड़ने को बोला और धीरे धीरे बार बार ये प्रैक्टिस करने से वो जो शेरों का बच्चा उनमें घुल मिल गया था भेड़ों में, वो अपनी असलियत को जान करके अब हमेशा के लिए अलग हो गया और शेर की तरह ही बिना किसी डर के वो उस जंगल में रहने लगा। तो इस कहानी का कहाँ इससे संबंध है वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब ये तो कहानी है भाई एक जानवर की। अब मैं आपको एक अपने रोज के मर्रा के एक्सपीरियंस की कहानी बताती हूँ, दूसरे नंबर की कहानी। तो क्या ये कहानी क्या है कि हम लोग को सबको मालूम है कि सूरज डूबता नहीं है ना। वो अर्थ क्योंकि टिल्टेड है और अर्थ यूं करके रिवॉल्व हो रही है, तो होराइजन ऊपर आता है, सूरज वहां का वहां रहता है। अब आप हर रोज 40 दिन तक सूर्यास्त के समय बैठ जाइए और देखिए और आप अपने आप को कहिए कि ये जो मैं कहती हूँ सूरज डूब रहा है, असल में सूरज डूब थोड़ी रहा है। जो असलियत है, आपको साइंस से मालूम है असलियत क्या है, होराइजन ऊपर आ रहा है और लग रहा है कि ये डूब रहा है क्योंकि अर्थ इज मूविंग बैकवर्ड्स लाइक दिस, है ना। 40 दिन के बाद करने की बात, अगर बाय चांस आपका एक फ्रेंड आया और उस समय सूर्यास्त का समय था, तो वो फ्रेंड ने कह दिया अरे सूरज डूब रहा है, तो आप क्या कहेंगे? इमीडिएटली आपके अंदर से निकलेगा नहीं नहीं सूरज नहीं डूब रहा है, सूरज थोड़ी डूबता है, सूरज तो वहीं का वहीं है, वो राइजन ऊपर उठ रहा है ना। आप कहेंगे कि नहीं? तो ये बात है, इस वजह से हम लोग बार बार ये चीज आत्मबोध में भी और हर बार वेदांत में यही बातें रिपीट करते हैं, जो हमारे जहन में ये ठहर जाए, हम लोग कन्विंस हो जाएं, हम लोग इसका निधिध्यासन हमारे अंदर से हो जाए और हम लोग हमेशा के लिए अपने सेल्फ में टिक जाएं। तो दोनों कहानियां आपको आज के जमाने की तो अब आप लोगों ने ये सुन ली और फिर हम लोग, सो नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि देखिए गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि ऑनर योर बॉडी। तो ऑनर योर बॉडी क्यों कहते हैं? यहाँ तो कह रहे हैं कि भाई मुझे तो आत्मा में टिकना है और देह और इसके सब कुछ ये सब छोड़ देना है, ये सब डेब्री है, इसके बारे में ध्यान नहीं करना। लेकिन एक बात को समझिए कि विदाउट द माइंड बॉडी मैकेनिज्म we would not be able to have the intuitive understanding which is now dawning upon us when we hear Atmabodh. तो हम लोग क्या करें, इस बॉडी की जो जर्नी है, कौन सी जर्नी? पैदा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर रिंकल्स आए, फिर और ज्यादा डिके हुआ और फिर एक दिन खत्म हो गया। ये जो बॉडी की जर्नी है, इसको एक तीर्थ यात्रा करके देखें कि ये बॉडी की यात्रा एक तीर्थ यात्रा है। तीर्थ किसका हो रहा है? इस सवारी का हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। हाँ, मैं तो आत्म तत्व हूँ, मेरा तीर्थ नहीं हो रहा है, वो बॉडी का हो रहा है। तो फिर क्या, तो अब आपकी ये बॉडी ने तीर्थ कर लिया, ये हो गया, और वेदांत ने आपको बता दिया कि बॉडी की कोई खास अहमियत है नहीं, आप आत्म। तो क्या आप जीरो हैं? सवाल उठता है, तो क्या आप जीरो हैं? नहीं, आप जीरो नहीं हैं। I am the entirety because I am the consciousness itself. I illumine the matter all over. I pervade everything. मैं ही फूलों में हंसता हूँ, सूर्य में रोशनी और गर्मास बन करके इस कॉस्मोस में जीवन प्रदान करता हूँ। हवाओं में बहता हूँ, जल की तरलता हूँ और आकाश में गूंजता हुआ नाद हूँ। ऐसा हमको अपने मेडिटेशन में, निधिध्यासन में एक्चुअली महसूस करना है।
अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मेरा एक्सपीरियंस कृष्ण से अलग हो सकता है? जब मेरी असलियत और कृष्ण की और ऋषि मुनियों की और रियलाइज्ड मास्टर्स की रियलिटी सेम है, तो उसमें फर्क की गुंजाइश नहीं है। सबका सबस्ट्रेटम सेम है। The self alone exists. Where can we travel to reach that which is by itself infinite? There is no place where it is not. What happens is that we are so accustomed to the identities that we have shaped in our mind that intellectually it may seem to be the truth to us, but the vivid and dynamic experience as a person has had so much sway over us for such a long time, and we keep on speaking as though there is something to do, a gap to close, because that is the language that a mind person will insist on using. The fact already is that no one can perfect the self, but we are universally convinced that we are separate and some sadhana is required to close the gap. Any sincere seeker will move beyond this, because this state of perpetually being a seeker is not satisfying. इसमें कोई संतुष्टि नहीं है। जब तक मैं उससे एक नहीं हो गया, जब तक मेरे में फुल एक्सपेंशन नहीं हो गई, जब तक मैं उसको इंस्टॉलमेंट्स में हासिल करना चाहता हूं, तब तक पूर्णता नहीं प्राप्त होती और डिससैटिस्फैक्शन बनी रहती है। Until the thought remains that a tsunami is happening in my mind, and when that becomes shant, then I will realize myself. जब तक ये वेटिंग की सिचुएशन रहेगी, तब तक हम खाली अपना ही सेल्फ रियलाइजेशन पोस्टपोन करते रहेंगे। अब आपको बताती हूँ कि आत्मषटकम में क्या लिखा है, ठीक है? जो यहाँ पर ये 32nd श्लोक में लिखा है वो ही आत्मषटकम में। तो संकल्प शून्य निराकार हूं मैं, ब्रह्मांड में व्याप्त इंद्रिय परे हूं, सदा समता में जो सो मुक्ति क्या बंध, चिदानंद रूप शिव तत्व हूं मैं। पहले 5 वर्सेस में उन्होंने नेति 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 किया। अगर सीधे खाली आपको बता दें कि आप सच्चिदानंद आत्मा है, तो आपके जहन में नहीं घुसेगा। आप ये नहीं है, आप ये नहीं है, आप ये नहीं है, फिर आप क्या हैं, ये आपको बताना जरूरी है। तो स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तो वो किस लाइन से अपने लेक्चर शुरू करते थे? लिसन ye children of immortal bliss. Listen ye children of immortal bliss. यहाँ से वो अमेरिकन के कानों पे अपनी पहला ज्ञान का वार्ता डालते थे। तो ये कहाँ से आया है ये लाइन? शृण्वन्ति विश्वे अमृतस्व पुत्रा, आये धामानि दिव्यानि तस्ते। शृण्वन्ति विश्वे अमृतस्व पुत्रा, हे चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस। यहां से वो शुरू करते थे। और देखिए, जब हम इस संसार में आते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट वी think is the truth. Oh, we have discovered the truth. What is that truth that we discovered? We are going to die.
We are fated to die. Whether I am an atheist or I am a theist. चाहे मैं भगवान में मानती हूँ, चाहे भगवान को नहीं मानती, मेरी मौत तो it is the only truth or reality which I will have to face. चाहे राजा हूँ, चाहे रंक हूँ, है ना? और ये सब बातें जो हैं, the denial of death और the affirmation of death, ये आजकल बहुत ही फैशनेबल और पॉपुलर हो गई हैं. तो एक मॉडर्न डे के ऑथर ने भी, एक पुलित्जर प्राइज विनर है वो, उसने एक किताब लिखी है, उसका नाम है द डिनायल ऑफ ट्रूथ ऑफ डेथ, द डिनायल ऑफ डेथ. And you know, he got the Pulitzer Prize just before he died. And his book is called The Denial of Death. And what does he write the last line in that? I have realized that the infinite being, that I have realized that infinite being blazing forth like the sun forever beyond darkness of death, disease and suffering. This is what he has written, and that is why he was able to do. So death किसकी हुई? Body की death हुई. Body की death होएगी ही, है ना? तो यहाँ हमारा 32nd वर्स कंप्लीट होता है और अब हम 33rd वर्स कंप्लीट करते हैं. अमनस्त्वान्न, अमनस्त्वान्न, कोई बोलेगा? अमनस्त्वान्न में सुख राग में, अमनस्तान्न में मतलब मैं, अमनस्तान्न में बोल दीजिए. में सुख नहीं, दुख राग द्वेष भयादयः, दुख राग द्वेष भयादयः. हाँ. अप्राणो ह्यमनाः, शुभ्र इत्यादि इत्यादि श्रुति शासनात्. हाँ. I am other than the mind, and hence I am free from sorrow, attachment, malice, and fear. For the self is without prana and without mind, and pure and so on is the commandment of the great scriptures, the Upanishads. Now see all these shlokas, the next four more shlokas will be within the first person, where he says, I am like this, I am like this. This is the process of nididhyasan, where it gets completely settled and where I have marinated in this thought. You understand? So all these shlokas are in first person. It is more powerful. The I that I think I am, the I, this person, the I, where I use the word I think of myself as the person. This is more powerful, more potent than the teachings of this Atma Bodh. That is why we find it difficult to come out of it. Because I am consciousness, I have no mind. I, the consciousness, reveals the thoughts and emotions and sensations. Therefore, I have no dukh, rag, passion, dvesh or hate, bhai or fear, and all the mental torments that we go through. This is the mental conditioning, and we have to be
hypnotize ourselves from this conditioning. Atma Bodh is the dehypnotization of the conditioning in which we have bound ourselves. तो अब मैंने आपको वो दोनों स्टोरीज जो सुनाई थी, शेर वाली और वो सूर्यास्त की, अगर आप 40 दिन तक सूर्यास्त को देखते रहेंगे और ये अपने माइंड को ट्रेन करेंगे देखने के लिए कि देखो सूरज नीचे नहीं जा रहा है, होराइजन ऊपर उठ रहा है, तो तुम्हारी आत्मा में ये सब कोई भी बंधन नहीं है, सफरिंग नहीं है, डिटीरियोरेशन नहीं है और भूख और प्यास नहीं है. तो I hope that we who have got time and resources and the inspirations and Gurudev's support, we will give ourselves some time for this. ठीक है? अब आप लोग को जो कुछ भी आज के में समझ में आया है या कुछ एक्सेप्शनली अच्छा लगा है, उसको आप शेयर करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा. हाँ रोक्साना. So basically, it was nice to learn the method, of Niti. I am not the body and all. And I have already shared with you that just now at the time of my operation, I actually used it, because with the meditations which you have been teaching us about it earlier, so I am not this body. There was I prayed, I did everything helped. But I found that the maximum help came when I meditated on the fact that I am not the body. And the body seemed to vanish and the pain was so much better to manage, So today also you showed us further, Niti. I liked it because I have experienced how it works. Yes, so nice. Yes, Manisha. निधिध्यासा का तो ये था, लेकिन आज आपने उसको बहुत क्लैरिटी दी, जैसे कि फर्स्ट पर्सन में जाके आपको उसका ज्ञान लेना है. तो इट्स आई थिंक ये बहुत सिंपल वे है. अच्छा, वेरी गुड. मनन, श्रवण एंड निधिध्यास. श्रवण, मनन और फिर निधिध्यास. Yes, Nina. I'll mute myself. Yeah, I like that when you said the masters always don't say neti, because you're not going to listen to normal talk. You are only going to absorb what is the essence of the matter. That is the importance of the whole thing. We just take everything for granted. Right. हाँ, और कौन बोलेगा? लक्ष्मी जी, आप कुछ बताएंगी? अनम्यूट करिए प्लीज. पूरा सुन नहीं पाई थी, बीच में 2-3 बार उठना पड़ा, लेकिन एक चीज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जैसे इससे माइंड से, थॉट से हमें पता चलता है कि हम एग्जिस्ट करते हैं, बट हमारा रियल सेल्फ हमारी आत्मा है. हाँ, राइट. नाइस. रेखा जी. Amla ji, I wanted to say one thing, ki like when I was just like in equanimity state, my mind kept telling me ki how you are not sad. I could observe that ki mind, I could see ki mind is telling ki how you are normal. Then again it changed, I was not sad, nothing, but I could see that how the things are going. Mind is saying this. But today I realized that when you said that ki mind keep persisting, ki why you are not sad, the conditions are this, that. वही तो वो करता है, but maybe because of the because you are continuously doing this, you are in this subject the whole day,
so it Huh. doesn't affect you, but mind keep pressing sometimes. Right. Ki why you're not behaving like earlier you used to behave. I mean, this was so true. I tell you, ki I could really huh. relate, and I could, Huh. observe myself. Like I was observing that how mind is playing. Right. अच्छा हम Anybody लोग else? बोले ना Niti, कि you want to say something? आप जैसे बताए थे ना अमला जी, मनुष्य में इमोशंस होते हैं, हाँ, राग, द्वेष, भय, क्रोध, हाँ, मोह, हाँ. दुख, सुख। तो जैसे अगर कोई जानवर का बच्चा मरता है तो क्या उसको दुख नहीं होता है? उसको Not to the extent that a human being will be affected by it. जिस हद तक उसके अंदर मन है, उस हद तक उसको अफेक्ट करेगा। जैसे जब हम लोग को वो लोग एनेस्थीसिया दे देते हैं तो कितना भी चीड़ फाड़ करते हैं तो हम लोग को मालूम नहीं पड़ता ना, क्योंकि हमारा मन उस समय वो लोग सुला देते हैं। या और किसको बोलना है? जैसे अब तक पढ़ा था कि हाँ। भाई जहाँ पे प्रथम सीढ़ी से शुरू करोगे तभी तो ऊपर तक जाओगे, पर आज तुमने जो कहा कि भाई हमको तो हाईएस्ट से ही शुरू करना है, हाँ। वहीं पे हम चूंकि ऑलरेडी है और हाँ। वही हमको रियलाइज करना है कि हम हाईएस्ट पे है। हाँ, because we are already that is why only we can experience it naturally. Yes. And the highest is the simplest, and we have to start from the highest to be in this that come to that. We have to know. और एज अ गृहस्थ हम लोग कैसे इतना सब अनरेवल कर सकते थे? बिना गाइडेंस के हम लोग को ये सब तत्व मालूम ही नहीं पड़ सकते। बहुत सुंदर एक्सप्लेन किए आज आप। पर आपने जो निधि ध्यासन आज बहुत मतलब एक एक चीज बॉडी को लेकर, माइंड को लेकर, इंटेलेक्ट, आई एम नॉट, मतलब इससे क्लैरिटी हुई है। निधि ध्यासन करने में एवरी मिनट व्हेन यू आर डीलिंग विद थिंग्स on the material world, I think it will be easy for us to well, at least I really like how to do nidhi dhyasan. Meditation is all right, but just every hour, every minute you can be connected to it. Right. तो थोड़ा थोड़ा हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। हाँ जैसे जैसे ये हम लोग को ऊपर ले जा रहा है आत्मबोध, वहां तक हम लोग भी दृष्टा से हम साक्षी में आ रहे हैं, वीकेंड से ना। बिल्कुल। अच्छा, फिर थर्सडे को मिलेंगे। थैंक यू कमला जी। थैंक यू सो मच। Thank you.